Good morning, students. My name is Hemlata Yadav, and I'm your teacher on the YouTube channel Science Life. And today I'm going to revise the concepts of biotechnology, the principles and processes with you through a PowerPoint presentation. So I'm sharing the screen. This is chapter 11 of biology, and we are understanding about the principles and the processes of biotechnology. So the contents are loaded to you. The definition of biotechnology, the principles of biotechnology, tools of recombinant DNA technology, processes of recombinant DNA technology. These are the contents. Now next is the definition of biotechnology. Biotechnology deals with technology of using living organisms or enzymes from organisms to produce products and processes useful for humans. So biotechnology uh, involve all those techniques in which we are using the living organisms or their enzymes for the welfare of the humans, for producing some products that are useful for the humans. And the definition which is given by the European Federation of Biotechnology EFB is the integration of the natural science and organisms, cells, parts thereof, and molecular analogs for the products and the services. So integration of natural science and organism. We have integrated the organisms and the natural science, and even we have integrated their parts, their molecular analogs, their products for the products and the services. Principles of biotechnology divided into mainly two, which are genetic engineering and maintenance of sterile environment. So two main uh, principles are there. One is we will be doing the genetic engineering. We will be learning about the basics of genetic engineering. And the second is the maintenance of the sterile environment. Genetic engineering techniques to alter the chemistry of the genetic engineering and the DNA to introduce these into host organisms and change the phenotype of the organisms. So, if we are using the techniques in which we are using to alter the chemistry of the genetic material, then that is known as genetic engineering. We are somehow altering the genetic material, and we are doing this genetic engineering. This is the DNA, and there are the various alterations we can do on this DNA by cutting them with the restriction enzymes. So this is main processes involved in the genetic engineering. Like we have used the restriction enzymes. Restriction enzymes are those enzymes that produce cut on the particular segment or by recognizing a palindromic sequence. So what is a palindromic sequence? It is the sequence which is having the same sequence or the same frame when we it is read from 5 dash to 3 dash, and the sequence remains same. And if it is read in reverse direction, now so sequence remains same. Eco R1 identifies one sequence which is called as GAATTC. So if here on the above strand there is a sequence GAA double T and C, on the next strand of the DNA, the same sequence will be there GAA, but in the opposite direction, double T and C. So this kind of sequence is cut by the eco R1, and it is cut between G and A. So it is cut from both the sides, from the both the strand and between the G and A, and it gives us a sticky end. That means there is an unpaired sequence and the endpoints on the endpoints of the cut DNA. So these type of endpoints which are having the single-stranded regions or overhanging regions are known as the sticky ends, because they have the ability to complementary base pairing. And when they come closer, they can also get paired. So in this formation of a recombinant DNA, one of the DNA having the palindromic site is of foreign DNA, and we have produced the cut in a foreign DNA in one of the strand, and in the other strand we have
produce a cut in the vector DNA. So vector DNA is a carrier molecule, carrier DNA molecule, and vector DNA, the foreign DNA, all both having the sticky ends, is will be joined to form a recombinant DNA. Now cloning, origin of replication and the cloning, how cloning is done. If this recombinant DNA has been transformed into a host cell, then the cloning can happen because it has a vector is having the origin of replication. Sequence from where the replication start is known as ORI, and the ORI is responsible for making the replication. And now, this is any piece of the DNA when linked with the ORI, it can be replicated because at the ORI, the DNA replication fork is formed. Selecting for the successful transformations, antibiotic resistance genes are there, which will be acting as a selectable marker gene. And because antibiotic resistance gene confers the resistance to the antibiotics, and when this gene make some proteins which make the bacteria give the bacteria quality of antibiotic resistance. So if in the vector we have made the recombinant DNA in the vector, it is having the foreign gene also, and when this vector is being transformed in the cells of the E. coli and they are grown in the media containing the antibiotic, if they are able to grow, that means the vector is successfully transformed in that cell, in the E. coli. The plasmid has both added gene and antibiotic resistance gene. So there is easy selection we can do antibiotic resistant gene on the basis of antibiotic resistance. So here one antibiotic resistance gene, ampicillin resistance is given, and other tetracycline resistance is given, shown by a turquoise color. And if we have used any of one of its restriction enzyme to, if for example, if we have added the foreign gene here in by cutting this PBR322 vector by the PST1 restriction enzymes, then our foreign gene will be added in this region. So antibiotic resistance of the to the ampicillin is lost, बिकॉज यहाँ पर हमने फॉरेन जीन डाल दी तो ये वाला रेजिस्टेंस तो लॉस हो जाएगा इस प्लाज्मिड में, बिकॉज इसकी जीन के अंदर इंटरप्शन आ गया, बट स्टिल टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस उस के अंदर रहेगा, उस बैक्टीरिया के अंदर. तो इसी डिफरेंस के बेसिस पे हम ऐसे सेल्स जो एम्पिसिलिन के लिए सेंसिटिव हैं और टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस उनको सिलेक्ट कर सकते हैं. क्लोनिंग साइट्स. Cloning sites are the third part of the vector, where the DNA to be cloned is inserted into the vector. This is usually a restriction enzyme site present in any of the selectable marker. तो जहां पर हम अपना क्लोन इंसर्टेड डीएनए डालना चाहते हैं वो हमारी क्लोनिंग साइट होती है, और ये सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट होती है. एग्जाम्पल BAM-H1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट क्लोनिंग साइट है सिलेक्टेबल मार्कर टेट्रासाइक्लिन के लिए. तो टेट्रासाइक्लिन में अगर हम अपना फॉरेन जीन डालना चाहते हैं तो BAM-H1 या SAL1 से हम यूज कर सकते हैं. दीज टू आर द क्लोनिंग साइट्स. And one more example is given here, which is having a multiple cloning site. Drug resistance gene are also there, shown by the blue. Green color is showing the multiple cloning site. Drug resistance is shown by blue, and origin of replication is shown by the red. And this is also a diagram of a vector. Now, selection of the recombinant is done by the insertional inactivation, that on the basis of where we have inserted the foreign gene, that property or that expression will be lost, and this is known as insertional inactivation. The selection of recombinant DNAs, when the transformation is done of recombinant plasmid into the E. coli, the E. coli will be get transformed. It has absorbed the foreign DNA from the
media into it. So it is known as transformation. Transformed cell will now be tried to grow in the petri dish containing the media, and no nutrient media is used with ampicillin. So here the bacteria are not growing, and if overnight it is grown, PUC19 insert and blue colonies PUC19. So PUC vector is showing white-blue selection, and it's also showing ampicillin resistance colony. What is white-blue selection? Because in this vector, beta-galactosidase gene is insertion inactivated, because in beta-galactosidase gene, it's used for breakdown of the lactose. So if the foreign gene is added into that portion, it cannot metabolize the lactose given in the media, and if that produces white colonies. And if if the recombination is not done, it is able to metabolize the lactose, which gives the result in the blue colonies. So on the basis of whether the foreign gene is inserted or not, we can also select the cells having the recombinant DNA. If they are having the recombinant DNA, it produces white colony. The gene has got insertionally inactivated. And if it is not having the recombinant, then blue colonies are formed. Now, vector-mediated transfer. Cloning vectors are there for the plant and animals. For plant, agrobacterium-mediated transformation is done. Here also we can see that the tDNA of the Agrobacterium tumefaciens having the Ti plasmid, tumor-inducing plasmid, and when the foreign gene is added into the tDNA region of the Ti plasmid, and that recombinant Ti plasmid, if it is transformed into Agrobacterium tumefaciens, then Agrobacterium is able to cause a natural infection of the dicot plant. So it it is exposed to the plant, and it get inside the plant, and it will be transferring its tDNA part. tDNA में अगर हमने कोई फॉरेन जीन डाल दी, जैसे कि अगर हमने बीटी की क्राई जीन डाल दी इधर, सो tDNA में अगर हमने अपनी फॉरेन जीन डाली है, एंड इस tDNA को अगर हम नेचुरली प्लांट से इन्फेक्ट करवा रहे, तो प्लांट के अंदर वो फिर एक्सप्रेस होने लगेगी, क्योंकि tDNA पोर्शन, टाई प्लाज्मिड का tDNA पोर्शन इसके अंदर चला जाता है प्लांट के अंदर। तो ये जब ग्रो होगा तो इसके अंदर क्राउन गॉल डिजीज करेगा, और ये एक्सप्रेशन भी करेगा tDNA के अंदर, बिकॉज अब ये प्लांट सेल के अंदर tDNA इंसर्ट हो जाता है। तो ट्रांसफॉर्म्ड प्लांट सेल नेचुरली जेनेटिक इंजीनियर कहा जाता है एग्रोबैक्टीरियम को, क्योंकि जब वो इन्फेक्शन करता है प्लांट में, तो वहां पर क्राउन गॉल डिजीज करता है। क्राउन गॉल डिजीज के बाद वो प्लांट सेल्स के अंदर अपना tDNA एबल करता है, tDNA को टू गेट इंसर्टेड इनटू द प्लांट सेल। द plasmid DNA, if it is लाइपोसोम मीडिएटेड ट्रांसफर में अगर इसको हम प्लाज्मिड को ट्रांसफर करके भेज रहे हैं, तो देन ऑल्सो इट गेट delivered into the organisms like in the animals, and hydrodynamic injections can also be given of the plasmid. Electroporation or local or topical can be done to transfer the plasmid DNA. Foreign genes or reporter genes, through the virus mediated transfer also we can transform the cells into the animals. Method of introduction of rDNA into host. What are the methods of introduction of rDNA into host? Heat shock method. They are all known as the method of making the host competent. That means these methods are used for transferring also and making the host competent to absorb the foreign DNA. So first is heat shock, second is microinjection, biolistic method. It's not ballistic, it is biolistic, BIOLLIST. So spelling will change. Biolistic, BIOLLISTIC, and use of disarmed pathogen can also be, which is
not having any harmful gene. That is known as a disarm pathogen. Process of recombinant DNA technology. There are steps which are shown in the flow chart. Isolation of genetic material, cutting of the DNA at specific location. These are the steps of our DNA technology. Number one, the DNA is isolated of genetic material, and second is cut by the DNA at a specific location. Third is the amplification of the gene. Fourth is the host insertion of the recombinant DNA into the host organism. Fifth is the obtaining of the foreign gene product. So these are the steps this you should learn. If you want to take screenshot, you can take and you can write them. कि सबसे पहले DNA निकाला जाता है, जिसका भी हमें वेक्टर बनाना है, उसके बाद उसे कट किया जाता है स्पेसिफिक लोकेशन पे, जो जीन हमें चाहिए वहीं पे उसके आसपास की रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करके वहां कट प्रोड्यूस करेंगे। फिर हम इसको वेक्टर में को भी उसी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे, फिर उन दोनों को जोड़ देंगे ताकि वेक्टर के थ्रू वो एम्पलीफाई हो जाए, या फिर हम पहले ही उस जीन को ज्यादा अमाउंट में पीसीआर से एम्पलीफाई कर लेंगे और तब हम उसको अपनी आउटपुट बढ़ाने के लिए, प्रोडक्ट पाने के लिए हम उसका नंबर पहले ही इंक्रीज कर लेंगे फॉरेन जीन का, और अब हम इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए वेक्टर में डालेंगे, फिर होस्ट में डालेंगे, ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट, और फिर हम लास्टली फॉरेन जीन का प्रोडक्ट इससे पा जाएंगे। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल कैसे कर सकते हैं? अगर बैक्टीरियल सेल से हमें फॉरेन जीन चाहिए तो हमें लाइसोजाइम, बैक्टीरिया के सेल्स को लाइसोजाइम से इंजाइम के अंदर, सोल्यूशन के अंदर डालना पड़ेगा, क्योंकि लाइसोजाइम डिग्रेड द सेल वॉल। सो यहाँ पर सेल वॉल डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल डाइजेस्ट करने के लिए लाइसोजाइम चाहिए होती है, सेल वॉल को डाइजेस्ट करना है यहाँ पर। एंड प्लांट की सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए सेल्यूलोज चाहिए। बैक्टीरिया के सेल्स की सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करने के लाइसोजाइम चाहिए, और एनिमल्स के सेल को की सेल वॉल होती नहीं है, बट फंगल सेल्स होने चाहिए यहाँ पर। तो एनिमल्स यहाँ गलत लिखा हुआ है, फंगल सेल्स की सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए तो यहाँ फंगस आएगा, लाइक yeast and aspergillus and all of that. So we need chitinase. So हमने एक बार एंजाइम से ट्रीट कर लिया इनको। So chitinase is used for fungi. So animals की जगह यहाँ पर क्या आएगा? Fungi, fungal cell walls that you should learn. एंड इसके बाद हम इसमें आरएनए से, आरएनए राइबोन्यूक्लियस डालकर आरएनए को भी अलग कर देंगे, प्रोटीएजेस डालकर प्रोटीन को भी अलग कर लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ डीएनए चाहिए, हमें आइसोलेटेड डीएनए मिल गया। अब हमें स्पूलिंग मेथड से वो डीएनए अलग कर लेना है, जेनेटिक मटेरियल अलग हो गया, एडिंग द अल्कोहल into the in order to precipitate and get separated DNA, लास्ट में अल्कोहल डालने से प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। Then cutting of the DNA at specific point by restriction endonuclease in desired gene as well as in the vector, so that sticky end will develop। दोनों को हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर देंगे ताकि हमारा डीएनए बन जाए। एम्पलीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन बाय पीसीआर, पीसीआर के थ्रू हम उसको एम्पलीफाई कर लेंगे। प्रिपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बना लेंगे और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में भी डाल देंगे। ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, फॉरेन जीन प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट के लिए हम बायोरिएक्टर यूज कर लेंगे। बायोरिएक्टर में हम प्लांट सेल्स का भी कल्चर कर सकते हैं, बैक्टीरिया का भी कल्चर कर सकते हैं लार्ज अमाउंट में, और एनिमल सेल्स का भी कल्चर कर सकते हैं। क्लोनिंग प्लाज्मिड क्लीवेज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हमने प्लाज्मिड को क्लीव किया, उसमें हमने फॉरेन जीन का फ्रैगमेंट डाला, फ्रैगमेंट सेपरेटेड आफ्टर द क्लीवेज विद द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आरडीएनए हमें मिल गया। जब हमें आरडीएनए मिल गया, यहाँ पर हम प्लाज्मिड को वेक्टर की तरह यूज करते हैं, तो वेक्टर को और फॉरेन जीन जो हमने डीएनए रिलीज किया था उसको भी हम जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट प्रोड्यूस करते हैं, तो हमें ऐसे स्टिकी एंड मिल जाते हैं जो आपस में क्या हो सकते हैं, मैच कर जा, आपस में वो पेयर कर जाते। तो आरडीएनए मिल गया। आरडीएनए के बाद हमें यहाँ पर उसको ट्रांसफॉर्म इनटू होस्ट सेल में ट्रांसफॉर्म कर दिया। होस्ट सेल में ट्रांसफॉर्म करने के बाद कल्चर ऑफ द ट्रांसफॉर्म सेल में कल्चर करने लग गए।
कॉलोनी ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स, हमें बहुत सारे कॉलोनी मिल गई ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स की। एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन्स, अब इसमें जब हम लार्ज अमाउंट में इसे बायोरिएक्टर में ग्रो कराएंगे तो हमें प्रोटीन्स भी मिल जाएंगे। यहाँ बायोरिएक्टर का डायग्राम दे रखा है, सिंपल स्टर्टम बायोरिएक्टर फर्स्ट में दिखा रखा है, जिसमें इतने सारे प्रोसेस के लिए मेंटेन, एसिड बेस मेंटेन करने के लिए, पीएच कंट्रोल के लिए इन पॉइंट्स होते हैं। स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन के लिए इस वेसल को, जब हमें पहले इसमें कल्चर नहीं होता तो इसे साफ करने के लिए स्टीम से इसे साफ किया जाता है। फोम ब्रेकर, यहाँ ब्लेड्स लगे हुए हैं कुछ, जो इसमें जो फोम बनेगा उसको ब्रेक करते हैं। फ्लैट इम्पेलर्स भी लगे हुए हैं। कल्चर ब्रॉथ को घुमाने के लिए एजिटेटर्स भी लगे हैं, स्टेराइल एयर इसके अंदर पास करने के लिए। तो ये स्टिर टैंक होता है। नेक्स्ट इज द स्पार्ज स्टर टैंक, जिसके अंदर स्पार्जिंग की जाती है, बबल्स को कंटिन्यूअसली स्प्रे किया जाता है, जिससे कि यहाँ पर इंक्रीज होता है ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया, एंड इससे प्रॉपरली एयर जो सब जगह मिलती है, सरफेस एरिया एयर एक्सचेंज का बढ़ता है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के वक्त जो भी रॉ मटेरियल्स होंगे वो रिलीज करवाए जाएंगे, रॉ मटेरियल को रिलीज करवाया जाएगा। इनोक्यूलम, जब हम रॉ मटेरियल को आफ्टर प्रोडक्ट बनने के बाद स्पेंट मीडियम के फॉर्म में रिलीज कराया। तो पहले हमने रॉ मटेरियल डाला बायोरिएक्टर में, और हमने इनोक्यूलम भी डाला, जो ऑर्गेनिज्म हमें ग्रो कराना है वो भी हमने इंसर्ट किया बायोरिएक्टर के अंदर। बायोमास प्रोड्यूस हुआ, जो कन्वर्ट है। बायोमास इज द बैक्टीरिया विल ग्रो इटसेल्फ, बैक्टीरिया अपने आप को ग्रो करेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो बायोमास बनाएगा, ऑर्गेनिक मैटर बनाएगा। उसको सेपरेट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को अलग करना पड़ेगा। प्रोडक्ट फिनिशिंग, प्रोडक्ट की फिनिशिंग भी करवाएंगे। अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग होगी बायोरिएक्टर की, देन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग होगी। So these are the steps of the processing, downstream processing, product finishing, the process by which the purification and the biosynthetic of biosynthetic product before it is ready for marketing as a finished product is known as downstream processing. जो process है separation का, purification of biosynthetic products का, जो marketing से पहले जो किया था उसे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। स्टेप्स क्या होते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के? फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोडक्ट विद प्रेजर्वेटिव्स, क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ ड्रग, फॉर्मुलेशन, स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग फॉर ईच प्रोडक्ट। तो ये सब किया जाता है इसमें डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में, कि प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन बनाया जाता है, प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं, क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है ड्रग का, अगर वो कोई मेडिसिन है तो उसका ट्रायल कराया जाता है फॉर्मुलेशंस का, और स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है हर प्रोडक्ट का। उसके बाद हमारा प्रोडक्ट बनकर मैन्युफैक्चर हो जाता है। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी जो जो हमने पढ़ी हैं, एंड आपको ये पूरा ओवरव्यू पता चल गया है बायोटेक्नोलॉजी का, मेथड्स उसके, एंड वेक्टर मीडिएटेड ट्रांसफर्स, ये सब आपको क्लियर हो गया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिकेशंस के थ्रू। ऑन द पार्ट्स ऑफ द वेक्टर, जो सिलेक्टेबल मार्कर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एंड ओरी रीजन, और ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का कॉन्सेप्ट है, 1963 में दो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल थी रेस्ट्रिक्शन के लिए ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज को ई कोलाई में, उन्हें आइसोलेट किया गया था। एक तो उनमें से मिथाइल ग्रुप ऐड करती थी जिसे डी ऑक्सी एडिनोसिन मिथाइलेज बोलते हैं, दूसरी रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो डीएनए को कट करती थी। पहली रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस हिंड सेकंड थी, और किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को नाम कैसे देते हैं, फर्स्ट लेटर उसका जीनस के लिए होता है, जैसे इको में ई इज फॉर एसिडलीचिया, एंड सेकंड थर्ड लेटर उसका स्पीशीज के से आता है, तो कोली का सीओ कोलाई से आया, आर इज फॉर द आर वाई स्ट्रेन, एंड वन इज द नंबर वन ऑर्डर इन विच द एंजाइम इज रिलीज्ड। ये नोमेनक्लेचर होता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमेशा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को ही रिकॉग्नाइज करती हैं, यानी कि ऐसे सीक्वेंसेस जो सेम होते हैं दो स्ट्रैंड्स पे, जिनकी ओरिएंटेशन रीडिंग की सेम रहती है अगर हम उन्हें रीड करते हैं। तो यहाँ पर स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करने वाली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। टूल्स, ये 3 टूल्स है हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, क्लोनिंग वेक्टर और कॉम्पिटेंट होस्ट।
सो इनसे ही हम बायोटेक्नोलॉजी को करते हैं। बेसिक स्टेप्स अगर हम बोलें, 3 स्टेप्स में बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक स्टेप्स, तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना डीएनए का डिजायरेबल जीन से, सेकंड नंबर पे इंट्रोडक्शन करना आइडेंटिफाइड डीएनए का होस्ट में, और थर्ड मेंटेनेंस ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए इनटू प्रोजेनी। किस तरह से मेंटेनेंस करवाएंगे हम इंट्रोड्यूस डीएनए का होस्ट में और फिर उसको प्रोजेनीज में उसके भेजेंगे। तो दैट इज द 3 बेसिक स्टेप्स इन द जेनेटिक मॉडिफाइंग द ऑर्गेनिजम्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ही करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एनवायरनमेंट, दिस इज द सेकंड स्किल in which the sterility of the ambience of the chemical engineering process is done. This enable the growth of only the desired microbe and eukaryotic cell in large quantity for the manufacture of biological products like antibiotic, vaccines and enzymes. So ये दोनों जो फील्ड हैं, प्रिंसिपल्स है बायोटेक्नोलॉजी के। एक तो हम जब पहला जो हमने डिस्कस किया जेनेटिक इंजीनियरिंग करना, आरडीएनए टेक्नोलॉजी भी जिसे कहते हैं, किस तरह से हम 3 टूल्स की मदद से, यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, वेक्टर और कॉम्पिटेंट होस्ट की मदद से किस तरह से हम अपना डिजायरेबल जीन को होस्ट में डालकर प्रोजेनीज के अंदर ट्रांसफर करते हैं। और ये एक फील्ड होता है। और सेकंड फील्ड होता है इसी का कल्चर हो, सिर्फ इसी की ग्रोथ होनी चाहिए डिजायर्ड माइक्रोब की लार्ज क्वांटिटी में। तो किस तरह से हम स्टेराइल इन्वायरमेंट, एम्बिएंट इन्वायरमेंट उसको देते हैं ताकि हम लार्ज क्वांटिटी का प्रोडक्ट बना सके, एंटीबायोटिक, वैक्सीन और एंजाइम बना सके। तो दीज टू आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी and I hope you have understood this. These two principles we have discussed, techniques, genetic engineering की definition भी दी है, किस तरह से हम genetic material को alter करके और इसे introduce करते हैं host organism में and उसका phenotype change करते हैं. So these are the basics of the biotechnology. So let us understand now another part of this chapter, that is the biotechnology principles and processes, and another part is explained here. The learning outcome, student will be able to identify the different restriction enzymes, stages of PCR, define biotechnology, insertion and activation, describe the working of restriction enzyme bioreactor, apply the gained knowledge and appreciate the role of biotechnology in human processes. Biotechnology की definition, it deal with the technique using living organisms or enzymes to form from the organism to produce products and processes useful to humans. एंड यूरोपियन फेडरेशन के थ्रू जो डेफिनेशन है वो भी हमने पिछले पीपीटी में भी देखी, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल्स एंड पार्ट्स एंड देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर द प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज। जेनेटिक इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, दो इसके मेजर फील्ड हमने देखे। स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोअर 1972 में फर्स्ट आरडीएनए इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था। उन्होंने कट किया था पीस ऑफ द डीएनए फ्रॉम द प्लाज्मिड से जिसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस थी, उस डीएनए को कट किया एंड उसको सैल्मोनेला टाइफीमुरम से कट किया और उसको फिर प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई में ट्रांसफर किया। द प्लाज्मिड ऑफ द डीएनए, द प्लाज्मिड डीएनए as vector to transfer the piece of DNA attached to it. The rDNA was introduced into the E. coli and it could replicate using the new host DNA polymerase enzyme, making multiple copies. E. coli में ये रेजिस्टेंस चला गया और वहाँ पर मल्टीपल कॉपीज इन्होंने बनाई। बेसिक स्टेप्स क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायरेबल जीन, इंट्रोडक्शन इनटू द होस्ट, मेंटेनेंस ऑफ डिजायरेबल जीन एंड ट्रांसफर इनटू प्रोजेनी। तो यहाँ पर और भी हमें पता चल रहा है कि एक और बार हम इसको कर रहे हैं दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू कि डीएनए को हमने डिजायर जीन को रिमूव करवाया पहले सेल से, फिर हमने एंजाइम से कट करवाया है। इस पर्पल
कलर के फॉरेन जीन हमारी पर्पल कलर से शो हो रही है, इसको फिर हमने वेक्टर के अंदर डाला है, ऑरेंज हमारे वेक्टर शो कर रहा है, उस उन दोनों को हमने सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया था, इसलिए वो आराम से पेयर अप हो गए और आरडीएनए बन गया। आरडीएनए बनने के बाद हमने इसे सेल्स के अंदर ट्रांसफॉर्म करवा दिया, ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेल के अंदर चला गया इकोलाई में, और अब ये बैक्टीरिया जब जब मल्टीप्लाई करेगा इसके अंदर ये प्रोजेनीज में इसके पास होता जाएगा। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में इसी तरह से हमें पास करना होता है। तो 3 स्टेप यही होते हैं, आइडेंटिफिकेशन कराना फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, इंट्रोडक्शन करवाना होस्ट में, और फिर मेंटेन करना हो डिजायरेबल जीन को प्रोजेनी में वो ट्रांसफर करे। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी 3 है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, क्लोनिंग वेक्टर एंड कॉम्पिटेंट होस्ट। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम न्यूक्लिएसेस दो तरह की होंगी, एंडोन्यूक्लिएसेस, एक्सोन्यूक्लिएसेस, जो कट करेंगी डीएनए को स्पेसिफिक पोजीशंस पे विद इन द डीएनए, अंदर की तरफ अगर डीएनए कट करती हैं तो एंडोन्यूक्लिएसेस बोलते हैं, अगर एंड पॉइंट्स पे कट करती हैं तो एक्सोन्यूक्लिएसेस बोलते हैं। एवरी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आइडेंटिफाई डिफरेंट सीक्वेंसेस, हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम स्पेसिफिक होती है अपने सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने में, और जिन सीक्वेंसेस को वो आइडेंटिफाई करती हैं उन्हें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस कहते हैं। पैलिंड्रोम्स आर द सीक्वेंसेस ऑफ बेस पेयर दैट रीड सेम बोथ बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स। यहाँ पर दिखा रखा है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस 5' to 3', 3' to 5', इस तरह से ये सीक्वेंस होते हैं। नेमिंग द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नेमिंग दिखा रखा है, इको R1 एंजाइम का नाम बताया है, जो हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये पिछले साल का क्वेश्चन भी था, किस तरह से हम आरडीएनए बनाते हैं। तो वेक्टर डीएनए को रेड से शो किया, फॉरेन जीन को ब्लैक से शो किया, दोनों में ही इन्होंने इको R1 की पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे G और A के बीच में कट प्रोड्यूस किया है जिससे स्टिकी एंड बन जाए। तो जब स्टिकी एंड बन गए तो इन्होंने इन दोनों कट एंड्स को स्टिक मतलब ये पास आए तो इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करके और लाइगेज की मदद से ज्वाइन करा दिया। रोल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आरडीएनए बनाने में बहुत काम आता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डबल स्ट्रैंड के डीएनए को पर्टिकुलर फैशन में कट करता है, कट प्रोड्यूस हो जाते हैं, स्टिकी एंड बन जाते हैं, तो डीएनए एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर लेता है, दो सच फ्रेगमेंट मिल जाती हैं तो बेस पेयरिंग से ज्वाइन आती हैं। दीज ज्वाइन फ्रेगमेंट्स विल बी फॉर्मिंग यूजिंग अ लीनियर मॉलिक्यूल सर्कुलर वन एज शोन इन देयर plasmid. Other combination fragment can also occur. The enzyme DNA ligase is used to join them. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या होता है, सेपरेशन होता है, आइसोलेशन होता है डीएनए फ्रेगमेंट्स का। द फ्रेगमेंट्स obtained after cutting with the restriction enzymes are separated using gel electrophoresis. इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस मैट्रिक्स में, एरेग्रोस जेल में नेगेटिवली चार्ज डीएनए फ्रेगमेंट एनोड की तरफ जाता है। डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज आफ्टर स्टेनिंग विद द कंपाउंड नोन एज इथिडियम ब्रोमाइड। डीएनए फ्रेगमेंट को मिथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करके देख सकते हैं, यूवी से जब एक्सपोज करते हैं तो वो हमें दिखाई देता है। इल्यूशन क्या है, सेपरेशन ऑफ द डिजायर्ड डीएनए। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन दिखा रखा है यहाँ पर। रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, जैसे हमने पहले भी देखा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, जिनमें जो एंजाइम है उनसे अगर हम कट प्रोड्यूस करते हैं तो हमें वहां पर फॉरेन डीएनए हम डाल सकते हैं। तो जब हम जिस भी पोर्शन में डालेंगे तो वो हमारा वो वाला प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाएगा। तो अगर हम टेट्रासाइक्लिन में डालते हैं तो हमें वहां पर हमारा इंसर्शनल एक्टिवेशन हो जाएगा। पीबीआर 322 में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है और प्लाज्मिड होस्ट के अंदर डालते हैं तो रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक को देता है, और जीन क्लोन करते हैं तो रेजिस्टेंस मार्कर की तरह हमारा काम आती है रेजिस्टेंस जीन। रेजिस्टेंस मार्कर डिस्टर्ब हो जाता है तो सेंसिटिव हो जाता है उसके लिए। क्लोनिंग वेक्टर में प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेजेस दो कॉमन क्लोनिंग वेक्टर आते हैं, जिसमें प्लाज्मिड और दोनों ही होस्ट के अंदर एप्लीकेट करते हैं अपने आप को इंडिपेंडेंट ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। प्लाज्मिड दिखा रखा है पीबीआर 322 और बैक्टीरियोफेज भी यहाँ दिखा रखा है आपको। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर के पार्ट्स हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरी रीजन आपको डीएनए जो भी इससे लिंक है वो रेप्लिकेट होगा। सिलेक्टेबल मार्कर जीन सिलेक्शन में हेल्प करेंगी जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। क्लोनिंग साइट्स इको R1 हिंथर्ड PVU1 एंड BAMH1 है, ये आपके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के पास हैं। कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होते हैं, ये बैक्टीरियल सेल्स है जिनमें एबिलिटी है कि वो वेक्टर के अंदर अपने आप को वेक्टर को ये एब्सॉर्ब करेंगे।
आरडीएनए को ये एब्जॉर्ब करेंगे, ऐसे होस्ट कॉम्पिटेंट होस्ट कहलाते हैं। मेथड इनके अंदर डीएनए डालने का होता है केमिकल ट्रीटमेंट या इंक्यूबेशन, माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक जीन गन, डिसआर्म पैथोजन। तो केमिकल ट्रीटमेंट से हम ट्रीट करते हैं उस सेल को स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम से, इंक्यूबेट करते हैं सेल को आरडीएनए को आइस पे और 42 डिग्री पे, पुटिंग देम बैक ऑन आइस, इससे कि पोर क्रिएट हो जाते हैं और नेगेटिवली चार्ज डीएनए पॉजिटिवली कैल्शियम से सराउंडेड सेल्स के अंदर चला जाता है। इसके बाद माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू आप देख रहे हो, माइक्रो नीडल के थ्रू जिस जगह हमें साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस में डीएनए भेजना है वहां हम भेज सकते हैं एनिमल सेल्स में। बायोलिस्टिक जीन गन का यहाँ आप डायग्राम देख रहे हो किस तरह से हीलियम गैस की मदद से, इनर्ट गैस की मदद से दो मैक्रो प्रोजेक्टाइल हैं और माइक्रो प्रोजेक्टाइल हैं, वो गोल्ड कोटेड डीएनए के पार्टिकल्स को या टंगस्टन के ऊपर, अगर हमारा इनर्ट मटेरियल के ऊपर अगर डीएनए है तो उनको हम प्लांट मटेरियल से के अंदर बोम्बार्ड करते हैं, स्क्रीन से ये पार्टिकल्स गोल्ड के स्टॉप हो जाते हैं, बस डीएनए का कोटेड गोल्ड पार्टिकल अंदर चले जाते हैं। डिसआर्म पैथोजन क्या है? ये ऐसे पैथोजेंस हैं जो कि टीआई प्लाज्मिड या रेट्रोवायरस फॉर द एनिमल सेल्स एंड टीआई प्लाज्मिड फॉर द प्लांट सेल्स, ये जाते हैं into the host for adding their DNA डिजायरेबल जीन। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है पूरा बायोटेक्नोलॉजी का, फॉरेन जीन लिया, वेक्टर जीन लिया, दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया एंड डीएनए लाइगेज से ज्वाइन करवा दिया एंड ट्रांसफॉर्मेशन करा दिया सेल्स का। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी 6 स्टेप्स पूरे दिखा रखे हैं। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कटिंग ऑफ द डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन्स ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, insertion of the recombinant DNA into host cell or organism, obtaining foreign gene product, downstream processing. Isolation of genetic material can be done by 3 enzymes. Previous slide में हमने देखा कि lysozyme को बैक्टीरियल सेल्स के सेल वॉल डिग्रेड करने के लिए काम है, सेलुलेज को प्लांट सेल वॉल डिग्रेड करने के लिए, काइटिनेसिस को फंगल सेल वॉल डिग्रेड करने के लिए यूज में लेते हैं एंड इनसे हम डीएनए को आराम से आइसोलेट करा सकते हैं। कटिंग ऑफ डीएनए करवाया स्पेसिफिक लोकेशन बाय द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन करवाया कैरीमुलिस के इन्वेंटेड पीसीआर टेक्निक के थ्रू। इट वाज डेवलप्ड बाय कैरीमुलिस इन 1983 एंड इन विट्रो टेक्निक है ये, शॉर्ट टाइम में बहुत सारे कॉपीज पाने का डीएनए को। इससे 3 स्टेप होते हैं, डीनेचुरेशन, नीलिंग एंड एक्सटेंशन। यहाँ पर दिखा रखा है वो टारगेट सीक्वेंस लिया हमने, उसको ओपन किया, इसके दोनों स्ट्रैंड्स को टेम्पलेट की तरह वो एक्ट करेंगे। उन टेम्पलेट्स पे हमने पहले डीएनए प्राइमर्स लगाए, डीएनए प्राइमर्स लगाने के बाद हमने डीएनटीपीज दे दिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, और फिर हमने फर्स्ट जब हमने इनको अनपेयर किया था तो ये स्टेप कहलाता है डीनेचुरेशन, जिसमें 95 to 96 डिग्री पे किया जाता है एंड दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। सेकंड जब हम प्राइमर एनील कर रहे हैं तो वो 68 डिग्री पे होता है और डीएनए प्राइमर ऐड हो जाते हैं, और एक्सटेंशन एलोंगेशन 72 डिग्री सेल्सियस पे होता है, यहाँ पर नया डीएनए स्ट्रैंड बन जाता है। ऐसे ही अब अगर हम 20 साइकिल्स 30 साइकिल्स करें तो हमें मिलियन कॉपीज मिल जाती है। इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू, अब हम होस्ट में इन्हें डाल देंगे, इंसर्शन कर देंगे। ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया में डिसआर्म्ड वेक्टर बायोलिस्टिक माइक्रो इंजेक्शन मेथड से होस्ट में डाल दिया जाएगा। ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट, फॉरेन जीन प्रोडक्ट इस स्टेज में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका एक्सप्रेशन करवाएंगे, यानी प्रोटीन जो कि इनकोड होगा इन जीन से, किसी भी हेट्रोलोगस होस्ट में उसे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहेंगे। एंड बायोरिएक्टर्स को यूज करके लार्ज वेसल्स में 100 to 1000 लीटर के वेसल्स में हम कल्चर करके ऑब्टेन कर सकते हैं। ऑप्टिमम कंडीशन माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे, टेम्परेचर, पीएच, और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से हम अपना फॉरेन प्रोडक्ट पा सकते हैं। उसके अंदर हम प्योरिफिकेशन, सेपरेशन, फिनिशिंग करेंगे। और हम यहाँ पर एक डायग्राम भी देख रहे हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि प्योर प्लेट और स्टॉक कल्चर से हमने पहले उसे छोटे से फ्लास्क में ट्रांसफर किया, थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाई, फिर हमने इनोकुलम प्रिपेयर किया, फिर इनोकुलम को हमने लेबोरेटरी स्केल बायोरिएक्टर में उसको करा, फिर लार्ज स्केल बायोरिएक्टर में करा, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद सेल का हार्वेस्टिंग कर लिया, सेल्स को अलग कर लिया, प्रेसिपिटेशन और लिक्विड एक्सट्रैक्शन करके हमने लो रेजोल्यूशन का प्योरिफिकेशन स्टेप करा।
प्योरिफिकेशन स्टेप करने के बाद हमने क्रोमेटोग्राफी, वायरल इनएक्टिवेशन, पॉलिशन क्रोमेटोग्राफी, वायरल फिल्ट्रेशन, डाई फिल्ट्रेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोटीन बफर एंड लाइफलाइजेशन कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल करी। फाइनली फार्मास्यूटिकल में प्रोडक्ट की तरह वो तैयार हो गया, उसका क्लिनिकल ट्रायल्स हुआ और फिर वो यूज हो जाएगा। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग भी हमने करा ली। इस तरह से हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, और ये पूरा प्रोसेस आपको अगेन बताया हुआ है, कैसे वेक्टर को आइसोलेट करवाया, कैसे फॉरेन जीन को आइसोलेट करा के आरडीएनए बनाया। वेक्टर के अंदर हमने फॉरेन जीन डाली है यहाँ पर, ये डीएनए जिसके अंदर हमारा इंटरेस्ट जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसमें से हमने डीएनए लिया है, उसको हमने वेक्टर के अंदर डाला है। एंड इसके बाद हम इसको होस्ट में डाल चुके हैं, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। एंड देन क्रिएटिंग हार्वेस्टिंग द सेल कॉपी एंड द क्रिएटिंग द हार्वेस्ट ऑफ प्रोटीन प्रोडक्ट हमें मिल गए हैं। यहाँ पर हम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का एग्जांपल ले लें या माइलेज, सेलुलेज, इस तरह की एंजाइम्स का एग्जांपल लें, ये सब प्रोडक्ट हम आरडीएनए से बना चुके हैं। जीन इनकोडिंग द degradative enzymes for cleaning purposes and gene encoding for the proteins for the pest management, bt cotton, bt corn बना चुके हैं हम यहाँ पर। and these are the this is all about all the steps of the recombinant DNA technology. I hope आपको दो तरीके से मैंने पीपीटी और पूरा एनसीईआरटी बेसिस से समझाया, तो आपको ये समझ में आया होगा। और आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने सारे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हुए बायोलॉजी के स्टूडेंट से, ताकि उनको भी ये पूरा मटेरियल मिल जाए एंड दे आर ऑल्सो एबल टू प्रिपेयर वेल फॉर देयर एग्जाम्स. So with this, I would like to end my lecture here and let us now end the video here. I hope you have understood the lesson well. All the best for your exams of CBSE and happy learning to everyone. इसको रिवाइज करके आप खुद अपने लर्न करिए नोट्स एंड सीबीएसई सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करिए. That is enough for your good marks in the biotechnology chapter. Okay, thank you. Bye. Happy learning.